Hello everyone, welcome to Counsel India Present, the Psychology Talk Show. In this talk show that you already know that we talk about little deep insights about psychology in some case studies. So today we have psychologist Parmeshwari with us. So welcome Parmeshwari ji to the show. Yes. So Parmeshwari ji, welcome again. So Parmeshwari ji, I just want to ask you, please yourself introduce what kind of work you have done this amazing psychology field and tell us about your story quickly. Sure. Firstly, Bobbyji, and thank you, Council India, for giving me this opportunity to actually express myself and also relate to some interesting stories, what I have done taking the subject of psychology. Now, I have a more than 20 years of work experience and in the field of counseling, training, and content development. So, all these years, like I would say that majorly the investment of counselings that I've done is for more than 12 years. And I have worked with schools, I've worked with children, I've worked with parents, I've worked with teachers, empowered them and made them so industry specific ready so that they can take the decisions by themselves. एंड और मेजरली मैंने सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ काम किया है स्कूल में. सो आई एम मेरा जो फोटे है वो है करियर काउंसलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल काउंसलिंग एज वेल. सो मुझे ऐसे लगता है कि देर इज अ डायर नीड ऑफ काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रन बिकॉज टू मेक अ राइट डिसीजन एंड टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इनको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है जिससे वो अपनी डिसीशंस और वो अपनी जो उनका एस्पिरेशन है, राइट, उनको मैपिंग करने का एक तरीका होता है. Awesome. Fantastic. Thank you so much for this wonderful works. From last 20 years, you have been working with children, parents, and a lot more, many people. You're transforming their life. This is really awesome and really appreciate your work. So now, Parmeshwari ji would like to know your specialization, right? Where exactly you are impacting, what kind of audience specifically you are focusing upon, what is your specialization, what kind of problem you are solving. Okay, very good question, Bobby G. I've done my master's in psychology, and also I have done being a trainer. I have done my diploma in training and development from ISTD. And the most important certification I would say which I have done in counseling and guidance from Delhi University. तो जब मैंने ये सारे कोर्स किए तो मुझे ऐसे लगा कि हम हम अपनी फिजिकल जिमिंग बहुत करते हैं, हम अपनी फेस की ग्रूमिंग करते हैं, हम मेंटली मतलब फिजिकल ग्रूमिंग जिम्स जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, बट कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारा मेंटल जिमिंग भी बहुत ज़रूरी होता है. अगर हम ये मेंटल जिमिंग करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम एक्चुअली एज अ काउंसलर हेल्प करते हैं लोगों को, उसमें अगर हम पहले ही सिखा दें कि आप अपनी जो आपका जो मेंटल हेल्थ है उसको किस वे से कंट्रोल करके आप उसको अच्छी तरह मतलब लेके जा सकते हैं. क्योंकि when we do a lot of counseling with students and parents and all, where I find that there is a lot of mental health problem which students are actually undergoing. Also, basically, majorly starts from students from 8, 9, 10, 12, and then it goes up to the college time also. So, इसमें मुझे लगता है कि they have not been trained for their mind. माइंड को ट्रेनिंग देना, उसका मेंटल जिमिंग करना बहुत जरूरी है. तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है हमारे स्कूल सिस्टम में भी. कई स्कूल्स करते हैं, कई स्कूल्स नहीं करते हैं.
तो ये जो गैप अगर हम फुलफिल कर लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट आगे जाके लाइफ में बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज दे नो हाउ टू मैनेज देमसेल्व्स. नाउ इट्स एन एक्स्ट्रा लेग दैट वी आर कैरिंग इन आवर लाइफ. बहुत सारी डिजीजेज हैं, बट अभी सबसे ज्यादा डिजीज और प्रॉब्लम एरिया है स्ट्रेस. क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया हुआ है कि वी आर मोर पावरफुल देन what we think and how, like when we get stressed. बट हमें लगता है, लोगों को लगता है कि स्ट्रेस ही सबसे ज्यादा हावी हो रहा है बॉडी माइंड फिजिकल में. बट वी शुड, ट्रेनिंग और काउंसलिंग इतनी जरूरी है कि हमें पता बताना चाहिए बच्चों को, बड़ों को, पेरेंट्स को कि हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ताकि हमारे लिए हमारा मेंटल हेल्थ पे चीजें इम्पैक्ट ना करें. So there are a lot of techniques from the childhood, from the grassroots level. It should start with. People should know how to manage the stress. Stress techniques पता होना चाहिए. Displacements क्या होता है नहीं पता है. Reinforcements कैसे करते हैं पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि क्या पॉजिटिव reinforcements है क्या नेगेटिव reinforcements. वो वैसे ही चला आ रहा है. तो ये सारी, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गैप होता है स्कूल एनवायरनमेंट में भी और फैमिली एनवायरनमेंट में भी, जहाँ बच्चों को, स्पेशली बिकॉज आई वर्क विद किड्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, आई वर्क विद स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8, 9, 12. तो अगर इन सबको बहुत अर्ली एज से अगर नहीं सिखाया जाए कुछ कुछ टेक्निक, तो बहुत प्रॉब्लम होता है आगे जाके लाइफ में. सो दिस इज व्हाट, लाइक आई वुड सजेस्ट whoever is watching this video, that these techniques should be inculcated from the very beginning, so that you don't buy an extra leg of being stressed, and so Awesome. that you can Fantastic. make right decisions. Right. True. True. Very nice. So your work with the student children is really admirable. So Parmeshwari ji, we want to know, would you like to share some difficult case study of your working tenure? Would you like to help us to understand through this case study what you have gone through and how, why it was difficult for you and how you have gone through this and how you win over that difficult case? See, being a career counselor, the biggest challenge that we have is that to convince the parents. सो काउंसलिंग Right. ज्यादा बच्चों की ना करके हमें लगता है कि Mm. पेरेंट्स की काउंसलिंग हमें ज्यादा करनी पड़ती है, Right. राइट? सो Mm. दिस इज वन वेरी बिग बिग चैलेंज. नाउ द चैलेंज ये होता है कि पेरेंट्स अपने एस्पिरेशंस रखते हैं, और वो कई बार चाहते हैं कि मेरा जो एस्पिरेशन है मेरा बच्चा पूरा करे. फिर बच्चों Right. का एस्पिरेशन कहाँ है फिर? अब Mm. एक बच्चा म्यूजिक लेके पढ़ना चाहता है, या फिर एक्स्ट्रा मतलब लिबरल आर्ट्स लेके पढ़ना चाहता है, बट Mm. हमारे जो सोशल स्टिग्मा में साइंस ऐसा करियर है जिसको सबसे ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता है. बट लेट मी टेल यू, इट्स अ मिथ नाउ. ओके, साइंसेस have become backseat. There are other commerce, arts related subjects which actually is taking a very high stance nowadays. राइट. तो Right. इसमें Mhm. सबसे ज्यादा चैलेंज आता है कि हर पेरेंट यही चाहता है कि मेरा बच्चा साइंस पढ़े, सबको Mm. इंजीनियर और डॉक्टर ही बनना है. तो ये Mm. सबसे बिगेस्ट चैलेंज होता है. तो इस चैलेंज को हम फेस कैसे करते हैं? पहले तो हम Mm. फेस वैल्यू पे नहीं जाते हैं. तो हम जो टूल यूज करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, क्योंकि हमारे पास ब्लूप्रिंट चाहिए. जैसे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इनिशियली क्या करता है? So he will initially, he will suggest सर्दी खांसी बुखार. But what happens later on? अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो then he will be doing some blood tests. He will do X-rays. Reports चाहिए उनको. वैसे ही अगर जब सिचुएशन मुश्किल होता है, बच्चा कुछ पढ़ना चाहता है, पेरेंट्स को, तो हमें ब्लूप्रिंट चाहिए होता है. तो तभी हम साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं. उस साइकोमेट्रिक टेस्ट से एटलीस्ट प्रूव हो जाता है उनकी एप्टीट्यूड, राइट, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी. इन तीनों के बेसिस पे ही हम काउंसलिंग करते हैं, करियर काउंसलिंग. क्योंकि पेरेंट्स को यही लगता है कि हाँ मैंने ये सोच लिया है, बच्चा वही करेगा. बट बच्चे के अंदर एप्टीट्यूड भी होना चाहिए सर, बच्चे के अंदर Right. इंटरेस्ट भी होना चाहिए.
प्लस उसकी Right. पर्सनालिटी में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा लॉयर बने, बट पर्सनालिटी में लॉयर हैज टू बी अ वेरी स्मार्ट, एग्रेसिव काइंड ऑफ अ प्रोफेशन। काफी इंटेंस होता है, बहुत ज्यादा स्टडी करना होता है। आपका बच्चा क्या उस पर्टिकुलर डायनेमिक्स में है कि वो आगे जाके ऐसे काम कर सके? दैट्स व्हाई पर्सनालिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट पेरेंट्स एक्चुअली दे डोंट अंडरस्टैंड दिस एट टाइम्स, एंड इवन स्कूल्स Right. ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज उनको लगता है कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, अगर मार्क्स आ गया सो यू बिकम दैट। आइडियली नॉट। Your personality and your interest plays a very important role, not the numbers that comes on your assessments. तो ये हमारा Right. बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो फिर हम ब्लूप्रिंट के Right. साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं और उनको स्कोप दिखाते हैं। देखिए ये बहुत सारा स्कोप है, हो सकता है यू नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, एंड देन हम ब्रिज बनाते हैं एक पेरेंट का जो एस्पिरेशन है और बच्चे का एस्पिरेशन को दोनों को मिला के एक ब्रिज बनाते हैं, एंड वी कम टू अ कॉमन कंसेंसस कि ये है, आप ऐसे ये वाला स्ट्रीम लेके पढ़िए जिसमें आपको भी अच्छा लगेगा एंड बच्चा का इंटरेस्ट भी मैच हो रहा है। तो हम वेरियस Right. करियर Very nice. ऑप्शन मैपिंग वगैरह करके फिर हम करते हैं। तो चैलेंज तो ये बहुत ज्यादा होता है जब स्ट्रीम सिलेक्शन की बात आती है बच्चों के साथ, कि साइंस लेना Right. है, ह्यूमैनिटीज लेना है, कॉमर्स लेना है। Okay, great. So not just one, you might have a lot of such cases where you have done counseling of parents और उनको काउंसलिंग के थ्रू एक क्लियर पाथ जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट और बच्चे की पर्सनैलिटी और एटीट्यूड अलाइंड रहते हैं ताकि वो सही करियर में जा सके। बिकॉज आफ्टर ऑल उनकी सारी एनर्जी, पेरेंट्स का पैसा, टाइम, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। तो सही करियर के लिए चूज करना, सही पाथ को दिखाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन दैट। सो परमेश्वरी जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आजकल के टाइम में टॉप 5 या जो टॉप करियर्स हैं वो क्या हैं? जैसे आपने कहा कि ये जो साइंस का या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनने का, ठीक है, ये बहुत पहले था, अभी ऐसा नहीं है। अभी और बहुत अच्छे अच्छे करियर्स सामने आ रहे हैं। तो अभी कौन कौन से करियर हैं जो ज्यादा उभर के आ रहे हैं, जो टॉप पर चल रहे हैं, जिनको बच्चे चूज कर रहे हैं आजकल? तो सबसे टॉप का करियर, देखिए सबसे टॉप का करियर की बात करें तो सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट आता है, क्योंकि ये आईटी फील्ड के अंदर आता है। तो इसमें डेटा साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो साइंस लेके पढ़ना होता है, ठीक है। इसी की फैमिली में एक और आता है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आप साइंस लेके पढ़े, आप बिना साइंस लेके पढ़ के भी यू कैन बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर। और ग्राफिक डिजाइनर की जितनी सैलरी होती है वो एक इंजीनियर से भी ज्यादा होती है। तो अगर कॉमर्स वाले अगर कॉमर्स करते हैं या आर्ट्स वाले आर्ट्स भी पढ़ के भी आगे जाके ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, गेम डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, और राइट ऐप प्लेटफॉर्म्स की डिजाइनिंग करते हैं, तो ये करियर भी बहुत बूमिंग करियर है, राइट। Fantastic. So psychology is the need of the hour right now because psychology is everywhere. You go to the corporate एब्सोल्यूट, world, you choose any career nowadays, psychology is there, right? So एब्सोल्युटली, that's why learning psychology for everyone is also, becoming need nowadays. Whether it is the एब्सोल्युटली, product psychology, sales psychology, or psychology in counseling, or you name the career, you will find psychology there. So परमेश्वरी जी, इस psychology में हम थोड़ा और psychology as a career में थोड़ा और deep जाना चाहेंगे हम। If somebody want to make their career in psychology, तो क्या path है उसका? ओके ओके। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड बॉबी जी, यू आस्किंग दैट साइकोलॉजी लेके हम अपना करियर पाथ कैसे बनाएं। Right, right. तो अगर आप साइकोलॉजी लिए हो, अगर आप ह्यूमैनिटीज लेके पढ़ाई किए हो 12th में, ओके, बिकॉज इट स्टार्ट्स करियर स्टार्ट्स फ्रॉम 11th-12th। तो अगर आपने ह्यूमैनिटीज लिया तो एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी तो लेते ही लेते हैं, सोशियोलॉजी लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, बट साइकोलॉजी मेजरली मैंने ट्रेंड देखा है कि साइकोलॉजी लेते ही लेते हैं। आफ्टर 12th you complete your humanities and then you do your BA psychology.
आप बीए साइकोलॉजी में जा सकते हो, आप मास्टर्स इन साइकोलॉजी में जा सकते हो। अब मास्टर्स करते हो, मास्टर्स तक आपका साइकोलॉजी, दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग। एंड देन अगर इसको हम और ऑफ शूट करें तो वो डिपेंड करता है कि आप किस साइड इंटरेस्टेड हो। सो इधर यू कैन गो ऑन अ क्लिनिकल साइड, ओके, यू कैन गो ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये मेजरली दो एरियाज होता है जिसमें आप जा सकते हैं। एंड सिंपल जनरल साइकोलॉजी भी आप अगर पढ़ना चाहते हो जब पढ़ सकते हैं, ओके। Parmeshwari, we हाँ, also have a lot of students because we also offer यस, a lot of आई नो, psychology programs, यस, certificate programs, diploma program, degree programs. So we आई have a एम lot of अवेयर ऑफ इट, students, आई एम अवेयर। yeah, जो corporate sector में काम कर रहे हैं, as you are saying कि वहाँ need होती है. Yes, there is a huge need nowadays of people who are really skilled in psychology. टेकिंग स्किल इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। किसी आप प्रोफेशनल से स्किल्स लें और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। दिस व्हाट यू आर सेइंग। एब्सोल्युटली। या मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, जैसे कई लोग हैं जो पूरा मतलब दे वुड नॉट लाइक टू डू, ठीक है मैं फिर से बीए करूं, मैं 2 साल मास्टर्स करूं। तो लोग ऑलरेडी एक प्रोफेशनल फॉर्म में है, लाइक फॉर एग्जांपल टीचर्स है, right? You have lawyers, you have managers in big organizations, okay? They are in the learning and development, L&D वाली टीम में है, रिसर्च। तो इनको क्या लगता है कि अब मैं दोबारा से 2 साल थोड़ी बीए पढ़ाई करूंगा या फिर मैं मास्टर्स करूंगा। तो वो चाहते हैं कि मुझे शॉर्ट टर्म कोर्सेज दें जो काउंसिल इंडिया प्रोवाइड करता है, राइट? तो ये छोटा शॉर्ट टर्म प्रोग्राम से भी आप एक एक्सपर्टीज बन सकते हो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ टीचर। But in teaching, in B.Ed, probably you have not learned the nuances of psychology as a subject. So इसमें फिर आपका कोर्स बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि राइट। फिर वो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म कोर्स लेते हैं, पढ़ते हैं, थेरेपीज पढ़ते हैं, डायनेमिक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी थियोरीज है, चाइल्ड डेवलपमेंट पियाजेस की थियोरी है, और राइट, ऑल द मेजर साइकोलॉजिस्ट, और राइट, एरिक्सन की थियोरी। तो ये सारे पढ़ाई करके समझते हैं, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट भी पढ़ाई करते हो तो मैनेजमेंट की भी जितनी भी थियोरीज है वो इंटीग्रेट होती है साइकोलॉजिकल थियोरी से, बिकॉज मोटिवेशन, ट्रू। right? Then you have understanding, then you have learning, you have intelligences। तो ये एक अडल्ट लर्निंग के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये एक राइट। साइकोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट, और आपके जो कोर्सेज में, मतलब जो काउंसिल इंडिया के कोर्सेज में ये सारे इंटीग्रेट किया हुआ है, राइट? एंड जिससे क्या है कि इनको हर चीज का लर्निंग की बेनिफिट मिलती है। So this राइट। actually adds on whatever you are in expertise, but if you want to add on something, then Council India courses, it helps to add on instead of doing 2 to 3 years of courses. राइट। ट्रू। And that too directly from the psychologists, the experts who are really working in the field. So practical experience आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने वो ट्रेडिशनल स्टडी साइकोलॉजी में नहीं करी होती है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे परमेश्वरी जी यही है कि इफ समबडी वांट टू स्विच देयर करियर, मान लो कोई बैचलर्स या मास्टर्स उन्होंने किसी फील्ड में करी हुई है बट नाउ दे वांट टू स्विच देयर करियर, तो Hmm. दैट टू स्पेशली आई वांट टू आस्क यू इन साइकोलॉजी, तो क्या ऐसा भी होता है कि लोग अपना करियर स्विच कर सकते हैं या नहीं उनको करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो व्हाट इज द राइट वे टू स्विच देयर करियर? देखिए, अगर आपने एक पर्टिकुलर कोर्स लेके पढ़ाई की है एंड अगर आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा और स्कोप नहीं आ रहा, सी इट्स अ वेरी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी दैट वी से, इवन अब्दुल कलाम सेज, डॉक्टर अब्दुल कलाम रादर, कि if it is not of your interest, it was never of your interest. Okay. And second, he वेरी also नाइस। said, if, yeah, second, he also said that if you work and if work is not your passion, right, then you will never be able to work. And if it is your passion, you will never believe or you will never feel that it's your work. राइट। अगर आपका काम पैशन है तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली होते हुए जाता है।
तो इसी कंटेक्स्ट में मैं बोलना चाहती हूँ कि इफ एनीबडी वुड लाइक टू switch their careers and if they're not happy they can definitely do it. They should, and in fact they should do it. नहीं तो फिर वो पैशन रहेगा ही नहीं. ठीक है. और अगर आप साइकोलॉजी लेके पढ़ाई करना चाहते हो तो आई हैव सीन, मतलब मैं पढ़ाती भी हूँ साइकोलॉजी. मैंने लोगों को देखा है कि फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड, फ्रॉम बीइंग अ टीचर, दे ऑल वांट टू बिकम अ काउंसलर बिकॉज दे वांट टू हेल्प पीपल. तो अब वैसे क्या करेगा? अगर मैंने अपना मास्टर्स इंग्लिश में किया है, मैं इंग्लिश टीचर हूँ, बट मैं साथ साथ एक मतलब आई वांट टू गेट इनटू साइकोलॉजी, आई वांट टू काउंसल पीपल, देन व्हाट विल यू डू? देन यू विल पिक अप अ सब्जेक्ट, you will do a diploma, all right, and then you do this course and you can become a counselor, so it becomes very easy. मेरे बैच में एक डॉक्टर थी, डेंटिस्ट, और ये आप ही लोग के काउंसिल इंडिया के बैच में थी. तो वो डेंटिस्ट थी, बट वो एक्चुअली करियर काउंसलिंग का कोर्स कर रही थी. अब यही क्वेश्चन पूछा गया कि I've done enough of dental. I'm 55 years of age. I've helped people, but now I think I would like rest and I would like to counsel people. So how will I do the counseling, especially in the field of dentistry or getting into medical line? I need to learn how to counsel people because counseling is an art. काउंसलिंग एक आर्ट है, आप ऐसे नहीं कर सकते. तो उसके लिए आपको उसकी टेक्निकलिटीज समझनी होती है. सो देन यू पिक अप अ कोर्स एंड यू. तो ऐसे नहीं है कि लोग करियर चेंज नहीं कर सकते. आप चाहे एक लॉयर हो, एक डेंटिस्ट हो, एक आपका कोर तो वही है, बट ये आपका एड ऑन है कि कई बार आपको बुलाया जाएगा स्कूल में कि ठीक है, एज अ डेंटिस्ट और एज अ डॉक्टर, व्हाई डोंट यू कम एंड काउंसिल आवर स्टूडेंट्स? देन हाउ आर यू गोइंग टू काउंसिल इट? तो आपको इसकी टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए. तो एक लीडर है कंपनी में, but he's a very good manager. He's a qualified IITN, but he can't counsel people. काउंसलिंग की भी टेक्निकलिटीज होती है ना, कैसे काउंसलिंग करोगे? आपको फैमिली डायनेमिक्स पता होना चाहिए, आपको उसकी अंडरलाइंग फैक्ट्स पता होनी चाहिए, उसका मिथ पता होना चाहिए कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या प्रेजुडिसेस से बैकग्राउंड से आ रहा है. और एक पहले आपको वो सारी इसकी बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसके बाद आप काउंसलिंग का नेक्स्ट स्टेप में एंटर करते हैं. राइट. सो जो स्टेप्स होती है काउंसलिंग का, तो उसके, क्योंकि एम्पावरमेंट तभी आता है जब आपका कनेक्शन शुरू होता है. आपकी बात क्यों सुनेगा कोई? कुछ तो रीजन होना चाहिए ना. आप जब काउंसलिंग करते हो, काउंसलिंग इज नॉट गिविंग लेक्चर्स, बट इट इज दैट एम्पावरिंग. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट एम्पावर करना है. आपके पास बस वही एक शक्ति है कि आप दूसरों को एम्पावर, उनको सोचने पे मजबूर करो कि आपके लिए क्या अच्छा है. Right. And we play with words. We play with you need to change from an irrational thought, you need to come to a rational thoughts. Cognitive restructuring करना भी एक आर्ट है जो हम साइकोलॉजी में यूज करते हैं. You need to restructure the mind. Right. तो ये सब आप कैसे करोगे? आप एक प्रोफेशन में हो, वेरी गुड, कोर प्रोफेशन में है, बट इफ यू रियली वांट टू बी अ गुड काउंसलर and you need to evolve in your profession again, then you should pick up the course of psychology because you need to learn the technicality. Very nice, fantastic, awesome. So Parmeshwari ji कह रही हैं, everybody who is watching this episode, अगर आपका पैशन है, मैं आपको एक डेटा और बताता हूँ. 54%, मैंने डेटा कहीं से पढ़ा था, 54% जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर प्रोफेशन. तो जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भी कह रहे हैं कि पैशन होना चाहिए आपके काम में, तो आप अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो. कोई बुराई नहीं है जब आपको अवेयरनेस आती है. इफ यू वांट टू चेंज योर करियर, यू फील सो, प्लीज डू दैट. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो और सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आपकी इस लेवल पे अभी वो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो चुकी है. आप वो स्टूडेंट वाला माइंडसेट नहीं है. आप जो भी चीजें सीखोगे बहुत सीरियस होकर सीखोगे और अपने इंटरेस्ट की चीजें सीखोगे. वो जो जिन चीजों को सीखने में आपको 5-5, 10-10 साल लगते हैं लोगों को जनरली, वो आप 1 साल में, 2 साल में भी आराम से सीख सकते हो और कम समय भी सीख सकते हो.
तो यस यस, ये आप, बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट। अग- अगर कोई करियर स्विच करना चाहता है तो वी इनकरेज, बट पैशन वाला काम होना चाहिए, इम्पैक्ट वाला काम होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन वाला काम होना चाहिए कि यस, आप इस स्किल को सीख कर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, दैट इज ओके, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम भी, जैसे परमेश्वर जी, आप भी कह रहे हो, आप भी कई सारे हमारे प्रोग्राम्स में लोगों को ट्रेन करते ही हो, तो वी ऑलवेज इंकरेज पीपल कि अगर आपको साइकोलॉजी में करियर बनाना है तो टेक अ स्टेप, एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ द प्रोग्राम जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, और एक्सपर्ट से सीखो, उन स्किल्स को अपने अंदर इंकलकेट करो, एंड यू स्टार्ट योर करियर जर्नी, योर प्रोफेशन। सो चेंजिंग द करियर, कोई टैबू नहीं है, कोई वो जो माइक, सारा खेल माइंडसेट का है परमेश्वरी जी, सही। एब्सोल्युटली। वरना एग्जाम्पल तो ऐसे ऐसे हैं कि लोगों ने 60 साल में, 70 साल में भी अपने पैशन का काम स्टार्ट किया, एंड दे आर फेनोमिनली सक्सेसफुल। या एब्सोल्युटली। कैन आई ऐड वन थिंग जो मैं थोड़ा मिस यस कर प्लीज, गई थी? हाँ, या जैसे प्लीज गो अहेड। आपने ये बात बोली थी कि करियर चेंज कर सकते हैं, तो अभी जब मैंने दो कोर्सेज मतलब अभी रिसेंटली जो कराए हैं, जिसमें मैंने नोटिस किया था कि अ, बहुत सारे जो फीमेल्स होते हैं जो घर पे रहते हैं, क्योंकि पोस्ट हम्म। डिलीवरी के बाद इनका करियर स्टैग्नेशन आ जाता है, हम्म। राइट? राइट। तो करियर स्टैग्नेशन आ गया, तो इसमें क्या होता है कि वो फिर वापस जा नहीं सकती। जैसे अगर हम्म। उन्होंने कुछ बीकॉम किया हुआ या अकाउंटेंसी बैंकिंग में काम किया हुआ है या फिर इंजीनियर हो, बट वो वापस हम्म। जान, तो वो यही चाहती है कि क्या मैं ऐसा कोर्स पिकअप करूं जिसमें मैं घर से भी काम कर सकती हूँ, और मैं मतलब बीइंग अ लेडी आई कैन एक्चुअली गिव अ लॉट ऑफ इनसाइट्स इनटू इट। तो ऐसे हम्म। लेडी जिनका करियर स्टैग्नेशन पॉइंट पे आ गया है, जो पोस्ट डिलीवरी बच्चे हो जाने के बाद भी वो अपना करियर को वापस लाना चाहती है, तो हम्म। ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके काउंसिल इंडिया में भी देखा है और मैंने बाहर भी देखा हम्म। है जहां मैं पढ़ाती हूँ, हम्म। कि ये हम्म। सब साइकोलॉजी लेके पढ़ना चाहती है, राइट। right? And because see, being a female, there is a lot of empathy that is there in females as compared to men, I would say ज्यादा होता है empathy, and राइट, ट्रू। ये हम्म। फील्ड में empathy बहुत जरूरी है, because you need to understand in empathy का मतलब ही होता है कि understanding being in self of that person's shoes। हम्म। तो फीमेल्स जो जिनका करियर ब्रेक हो चुका है, जिनका स्टैग्नेशन हो चुका है करियर में, वो आगे नहीं बढ़ पा रही, तो वो भी साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कोर्स लेके एक न्यू करियर एस्टेब्लिश कर सकती है, बीइंग अ राइट। काउंसलर, वर्किंग इन द स्कूल, having your private practice and all. So this is trending also nowadays. परफेक्ट, ऑसम, साउंड्स गुड। साइकोलॉजी, Yes. बिल्कुल आपने कहा, सही कहा है, साइकोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि ह्यूमन माइंड में बहुत पोटेंशियल है, जितना जल्दी हम इस पोटेंशियल को रियलाइज करके यूटिलाइज कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारी लाइफ की क्वालिटी और बेहतर बनती जाएगी। वेरी नाइस, वेरी गुड। और दूसरा रीजन ये भी है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज ओवरलोडेड लोडेड, और वो कई बार वो कंफ्यूजन वो इतनी ज्यादा लोगों को हो जाती है, वो इमोशन को संभालने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, तो उसकी वजह से भी इस प्रोफेशन में बहुत स्पीड पकड़ी हुई है आज के टाइम पर। तो ग्रेट। सो परमेश्वरी जी, आवर नेक्स्ट राउंड इज द रैपिड फायर राउंड, आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, yes, I am. ओके, ग्रेट। सो रैपिड फायर राउंड में आपको क्विकली आपको आंसर करने की कोशिश करनी है। आई हैव 10 क्वेश्चंस फॉर यू। ओके, Okay. so here we go. Our first question: what is the first thing you notice about people? I notice their body language. Great. One word your friends would use to describe you. Very positive person and Great. cheerful as well. Is awesome. Is anxiety more common today than before? Yes, lot of Okay. anxiety. One, lot of anxiety. One movie that beautifully shows mental health. तारे ज़मीं पर
ये Great. Awesome. Hmm. okay. And one more movie Recently, that is हाँ. yeah, Hmm. Tare Zameen Par, and one movie is the Ye Zindagi, which is Shah Rukh Khan and Alia Bhatt's Dear movie. Zindagi, yeah. Dear Dear Zindagi, Zindagi, yes. yes, Dear Zindagi. That was an amazing movie for people to understand that anybody can have a mental health, right? Right. Mental health issues किसी को भी हो सकता है. True. Can a person heal without therapy? No, No. Okay. no. You need to, there has to be some therapy, a lighter, depending on the continuum of the problem. Hmm. So there needs to be a therapy. Right. A simple So, counseling, a friend's counseling is also a hmm. therapy, Right, right. right? चाहे आप Giving, सेल्फ ही करो, but there is a therapy. Yes. हाँ, थेरेपी आप सेल्फ भी करो Yeah. क्योंकि आप योगा भी करो तो योगा इज ऑल्सो अ थेरेपी. Therapy. True, true. Happiness or peace? What would you choose? हैप्पीनेस. Okay. What's your comfort food on bad days? सॉरी, कम अगेन. व्हाट इज योर What is your comfort food? Comfort. comfort food? Hmm. On bad days. Oh, on bad days, I would say chicken biryani. Okay. One question you wish people would ask their psychologist. How can I be stress free? Okay. Great. Favorite quote that keeps you going. Look always towards the sunshine, and you will never see the shadows. Awesome. Fantastic. If you could give one message to your younger self, what would it be? I would say live your life to the fullest, control your emotions, have a self awareness about yourself, and also have a social awareness that how do you behave in a social setting. So self awareness and social awareness is very important. Awesome. Fantastic. So we are done with the rapid fire round. Thank you so much. It was a lovely, session, lovely podcast with you. So before we hang up this podcast session, so we would like to ask you what strong message for today's youth you would like to give today. Okay, the Gen Zs. Yes. Yeah, so please stop overthinking. All right. uh, I know it's important to be versatile, but don't delve into too many things so that you have a lot of stress in your life. And yes, channelize your thoughts, mellow down your voice, and love yourself, I would say. Awesome. Fantastic. Great, Parmeshwari ji. Thank you so much. It was a lovely Same conversation with here. you. And yeah, definitely we would Thank love you. to have another podcast with you on counseling skills next time. Thank you so All much. right. Thank Sure. you.